में फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक नए पाठ की ओर चलते हैं। हमारी पहली इकाई के तीसरे पाठ मेरे भारतवासियों, जो कि एक भाषण है, उसकी ओर हम चलते हैं। तो बच्चों, आप लोग भाषण से परिचित हैं। भाषण माने स्पीच, इंग्लिश में उसे स्पीच कहते हैं। तो इस भाषण की ओर जाने से पहले आप जरा इन प्रमुख व्यक्तियों के भाषण जरा सुनिए। I am very happy to be with you on this day of Swami Vivekananda's birthday. So birthday is a very important birthday for India and also for this planet. You know, I have studied many of the books on Swami Vivekananda, and also I have had a lot of discussion with the experts. But one thing I want to share with you today, with all your ignited mind on Swami Vivekananda's birthday, what impressed me are two-line statements of Swami Vivekananda, and very rarely spoken those words. So I want to repeat the youth what he said. He is a spiritual leader of great might and representing the whole India, a spiritual leader. What he says, I want to read to you what he says. He said, my name, Swami Vivekananda ji says, my name should not be made prominent. These are my ideas that I want to be realized. So very rarely a human being, a leader, a people's leader, a spiritual leader will say, not my name, but my ideas that I want to be realized. So beautiful. So today what we need. Point number one. When you hear someone longing for the good old days, take it with a grain of salt. Take it with a grain of salt. We live in a great nation, and we are rightly proud of our history. We are beneficiaries of the labor and the grit and the courage of generations who came before. But I guess it's part of human nature, especially in times of change and uncertainty, to want to look backwards and long for some imaginary past when everything worked and the economy hummed and all politicians were wise and every child was well-mannered and America pretty much did whatever it wanted around the world. Guess what? It ain't so. The good old days weren't all that good. Yes, there have been some stretches in our history where the economy grew much faster. Malala Yousafzai, I call upon you to come forward and give your Nobel lecture. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of God, the most merciful, the most beneficent, Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear sisters and brothers, today is a day of great happiness for me. I'm humbled that the Nobel Committee has selected me for this precious award. Thank you to everyone for your continued support and love. Thank you for the letters and cards that I still receive from all around the world. Your kind and encouraging words
strengthens, and inspires me. I would like to thank my parents for their unconditional love. Thank you to my father for not clipping my wings and for letting me fly. Thank you to my mother for inspiring me to be patient and to always speak the truth, which we strongly believe is the true message of Islam. And also, thank you to all my wonderful teachers who inspired me to believe in myself and be brave. तो बच्चों, आप लोगों ने सुना भाषण एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका भाषण था, और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का भाषण था, और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला का भी भाषण उसमें सुना आप लोगों ने। वो पूरा सुनने की कोशिश कीजिएगा, जब भी आपको टाइम मिले तो उसको पूरा सुनिएगा। लेकिन वैसा ही एक भाषण है हमारा, ये पाठभाग भी मेरे भारतवासियों, जो कि नेहरू जी ने दिया था हमारी आज़ादी के दिन। हमें आज़ादी कब मिली थी ये तो आप जानते हैं कि 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। उसी समय नेहरू जी ने जो रात के 12 बजे 14 अगस्त के रात के समय जो भाषण दिया, वही भाषण का भाग यहाँ पर हमारे पाठभाग के रूप में दिया गया है। वो अब हम उसकी ओर चलते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने पहली इकाई के पहले पाठ के रूप में मातृभूमि को पढ़ा। तो उसमें क्या लिखा था द्विवेदी जी ने? द्विवेदी जी ने इस मातृभूमि की सेवा करने के बारे में लिखा है। इतना कुछ देती है हमें ये मातृभूमि, तो हमें भी उसके लिए बलिदान देना चाहिए। और दूसरा पाठ था बेटी के नाम पत्र। इसमें क्या आपने पढ़ा? इसमें पढ़ा 1857 के पहले स्वतंत्रता के युद्ध के बाद क्या हुआ बहादुर शाह जफर के साथ, दिल्ली वालों के साथ, भारत के साथ क्या हुआ, वो सब आपने पढ़ा कि पूरे देश को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। उसके लिए लड़ाई आरंभ हुई। सबसे पहले लड़ाई आरंभ हुई 1857 में। उसके बाद जब लड़ाई शुरू हुई तो आज़ादी हमें मिली कब? 1947 में। उसके इतने वर्षों बाद हमें आज़ाद हुए। तो उसके लिए न जाने कितनों ने अपनी जान दी, कितने लोग मारे गए, कितनों के घर बर्बाद हो गए, कितनों ने क्या कुछ नहीं किया हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। उन सबको की बलिदान के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। उसी आज़ादी के समय हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया, वही भाषण हमें यहाँ पढ़ना है इस पाठभाग के रूप में। तो वो पाठभाग की ओर जाने से पहले आप ये गीत जरा सुनिए। वंदे
Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which तो बच्चों, आप लोगों ने सुना भाषण का वो अंश जिसमें नेहरू जी ने 14 अगस्त रात 12 बजे हम भारतवासियों से अपील की है कि हमें आगे क्या करना है। हमें स्वतंत्रता तो मिल चुकी है, अब हम क्या करना है इसके बारे में नेहरू जी साफ साफ शब्दों में हमसे कहते हैं कि हमें क्या बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब बातों के बारे में हमें बताते हैं। तो कई वर्षों के प्रयत्नों के बाद हमें ये पुण्य अवसर मिला है, उस अवसर का हमें पूर्ण रूप से फायदा उठाना है। अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमें आगे ही चलना है, इस ओर संकेत करते हैं नेहरू जी पूरे भाषण में। तो हम अब भाषण के कुछ पंक्तियों की ओर चलते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिया गया प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी हिंदी में शेयर कर रहा हूँ। यह भाषण नेहरू जी ने इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संबोधित करते हुए दिया था। हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह ना सही, लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। इस भाषण के अंश का अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद है। आप दोनों अपने नोटबुक में लिख लीजिए। हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद लिख लीजिए। कई वर्षों पहले हमने नियति को मिलने का वचन दिया। तो यहाँ नेहरू जी कहते हैं कि नियति यानी भाग्य, वचन देना यानी कि प्रॉमिस करना। हमने ये वादा किया था कि हमें एक दिन स्वतंत्रता जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर किससे मिलने का वचन दिया था नेहरू जी ने? नियति से यानी कि भाग्य से मिलने का वचन दिया था। आगे भाषण देते समय नेहरू जी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह न सही, लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। बच्चों, निभाएंगे मतलब निभाना, टू फुलफिल। यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि अब समय आ गया है, हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है। जब रात के 12 बजे सारी दुनिया सो रही होगी तब क्या होगा? हाँ, सोचिए आप लोग, बोलिए क्या होगा? भारत स्वतंत्र होगा, स्वतंत्रता की नई सुबह होगी भारत में। यही नेहरू जी कहते हैं कि आज जब सुबह सब लोग जागेंगे तो हम स्वतंत्र होंगे, सब स्वतंत्रता के साथ नई सुबह के साथ जागेंगे। नेहरू जी आगे कहते हैं, एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने को छोड़कर नए की तरफ जाते हैं। इतिहास में कौन सा क्षण बहुत कम आता है? हाँ, जब कोई देश गुलामी के बाद स्वतंत्र होता है,
वही क्षण इतिहास में बहुत ही कम आता है। बच्चों, ये ध्यान से देखना है कि हमारे गुलामी के बाद हमें क्या मिली है? स्वतंत्रता मिली है। पुराने को छोड़कर हम कहाँ जाते हैं? हाँ, नए की तरफ जाते हैं, अर्थात गुलामी खत्म हुई, अब नया सवेरा है, स्वतंत्रता का नया सवेरा आ गया है। और आगे नेहरू जी कहते हैं, और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। शोषित मतलब शोषण किया हुआ है। देश की आत्मा कौन है? हाँ, बोलिए। वर्षों से शोषित इस देश की जनता, एक्सप्लॉइटेड जनता ही इस देश की असल में आत्मा है। अपनी बात कौन कह सकता है? इस देश की शोषित जनता ही अपनी बात कहने के अधिकार रख सकती है। आगे नेहरू जी लिखते हैं, यह एक संयोग है कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ खुद को, भारत को और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। तो यहाँ पवित्र मौका क्या है बच्चों? हाँ, सोचिए, पवित्र मौका क्या है? संयोग से मिली हमें जो स्वतंत्रता मिली है वही पवित्र मौका है। मौका माने चांस। समर्पण के साथ हमें क्या करना है? समर्पण के साथ हमें देश की जनता और मानवता की सेवा करनी है। हमें क्या प्रतिज्ञा लेनी है? जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने की प्रतिज्ञा लेनी है। इस भाषण के पहले अनुच्छेद में नेहरू जी यही बताना चाहते हैं कि हमें नियति से मिली इस स्वतंत्रता को पूरी तरह से निभाना है। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी और कल जब भारत उठेगा तो वो पूरी जीवन और स्वतंत्रता के साथ, नई सुबह के साथ उठेगा। ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब पुराने को छोड़कर नई की तरफ जाते हैं। हम पुरानी बातों को छोड़कर जब नई बातों की ओर जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा को अपनी बात कह सकती है, शोषित जनता को अपनी बात स्वतंत्र भारत में रखने की पूर्ण आज़ादी होगी। यह एक संयोग है कि इस पवित्र मौके पर समर्पण के साथ हम खुद को, भारत की जनता और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि हम मानवता की सेवा करें, यही हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं। के बाद अब बच्चों इस पूरे अनुच्छेद का संक्षेपण करते हैं। तो इस अनुच्छेद के लिए एक शीर्षक होना ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पर शीर्षक दिया है पवित्र मौका। तो भारत कल स्वतंत्रता की एक नई सुबह के साथ उठेगा। शोषित जनता को अपनी बात कहने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जनता की सेवा और मानवता की सेवा की प्रतिज्ञा लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।